Hello everyone. Today I'll be covering the 2023 12 questions of metamorphic petrology in the order. Starting from the 49 question, melanosome is a term that is associated with which one of the following metamorphic rock? Melanosome, leucosome, these are the terms and किससे वो associated है? Myelenite, surreticillite, migmatite, hornfels. So we should know about all of them. Myelenite क्या होता है? एक fine grain foliated rock होता है जो कि intense शेयरिंग ऑफ रॉक से होती है विद इन फॉल जोन. सो माइलाइट में आप याद रखना फाइन ग्रेन इंटेंस शेयरिंग ऑफ रॉक्स एंड इट इज प्रेजेंट इन फॉल जोन. Surreticillite is a glassy rock and it forms because of the frictional melting by the seismic event. Migmatite is something that consists of melanosome and leucosome. Melanosome is dark, leucosome is light colored, rich layers and something a mafic rich layer जो कि partial melting से underwent हुई है. And it's a mixture of metamorphic as well as igneous rock. Hornfels जो है fine grain non-foliated metamorphic rock होते हैं और contact metamorphism से ये बनते हैं. So melanosome is a term that is associated with migmatite. Sometimes people get confused with myelenite and migmatite. Migmatite is the correct answer. Coming to the 50th question, pseudotechylite. मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि pseudotechylite जो है एक ग्लासियर रॉक होते हैं जो कि फ्रिक्शनल हीटिंग और मेल्टिंग से फॉर्म्ड होते हैं. तो ड्यूरिंग सिस्मिक इवेंट. सूडोटेगिलाइट यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दी थी कि इट इज़ कॉमनली फॉर्म ड्यू टू व्हाट. Starting with the thermal metamorphism. Thermal metamorphism is something that involves the change in the rock because of the high temperature that is formed by nearby magma. Hydrothermal metamorphism is something that forms by the alteration of rocks and by the active fluids only. Retrograde metamorphism is decrystallization of mineral by decreasing temperature and pressure. So this term is totally different from the above. Frictional heating is pseudotechylite जो है वो भी intense frictional heating से ही और melting से ही formed होता है during seismic events and ये localized melting होती है और rapid cooling होती है. So pseudotechylite is the friction heating is the correct answer. Coming to the 51 question, which one of the following represents the metamorphism of a local extent? Local extent पूछ लिया, regional मतलब लोकल एक्सटेंट पे कौन सा मेटामॉर्फिज्म अकर हो रहा है. इम्पैक्ट मेटामॉर्फिज्म जो है ये क्या होता है कि एक मीटरराइट ने इम्पैक्ट डाला जो कि लोकली किसी रीजन में जाके पड़ता है. तो नहीं है कि पूरी आपके धरती पे आप बहुत बड़ा एरिया कवर, ऐसा भी नहीं है. इट्स लाइक स्पेसिफिक एरिया हाई एक PNT जो है आपका हाई हो जाता है, लोकल एक्सटेंट पे होता है. बरियल मेटामॉर्फिज्म जो है इट इज़ अ लार्ज एरिया बिकॉज ऑफ द बरियल ऑफ रॉक्स अंडर थिक सेडिमेंट्री रॉक्स. Ocean floor metamorphism covers an extensive area of the ocean floor that is mid-oceanic ridges, so it's not the local extent. Subduction metamorphism, it's a very large areas in subduction zone is covered where oceanic plates are forced down the continental plates, so oceanic plates. So impact metamorphism is the correct answer. Coming to the 52nd question, perfectly developed foliation. यहाँ पे foliation आ गया, perfectly developed foliation है of independent of bedding से independent. And results from the parallel arrangement आ गया यानी कि पत्तों की तरह arrangement आ गया of very fine grained not visible by unaided eye phyllosilicate. So we know mica and all how they are present like this, like leaves and metamorphic rock is called what? लिनिएशन. जब यहीं पे फोलिएशन बोल दिया तो लिनिएशन का तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दो तो कुछ है ही नहीं क्योंकि यहाँ तो लीनियर फीचर की बात हो रही है. यहाँ पे आ रही फोलिएशंस. ग्रेनुलेशन क्लीवेज जो है वो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी फोलिएशन होता है. एक स्मॉल फोल्ड का आपका सुपर इम्पोजिशन है लार्ज स्केल फोल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोलिएशन पे. सो दे भी आपका हट गया. फ्रैक्चर क्लीवेज जो है दैट इज समथिंग दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर दैट हैपन्स एट द वीकन प्लेन. Slaty cleavage is fine grained phyllosilicate that I already told you that is parallel to one another and it creates a planar structure that is independent of the original bedding. So slaty cleavage is the correct answer. Coming to the 53rd question, snowball garnet texture, example of which of the following matrix for fibroblast relation. So let me tell you, snowball garnet structure जो है that is syntectonic. Okay, that is totally syntectonic and it's something that is formed while the process is still going on. Now coming to the 54 question, दो स्टेटमेंट दे दिए. फर्स्ट दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया आपका 23 में. ओके, सो मेटामॉर्फिक फैब्रिक्स जो हैं जो भी आपके मेटामॉर्फिक फैब्रिक हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं अलाइनमेंट ऑफ सम ऑफ ऑल द कांस्टेंट मिनरल ग्रेन्स इन अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन. सेकेंड स्टेटमेंट है प्रेफर्ड ओरिएंटेशन में डेवलप बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल रोटेशन ऑफ द ओरिजिनली एसिमेट्रिक ग्रेन्स इनटू न्यू ओरिएंटेशन. दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर
positive statements and they are lengthy statements and they have a meaning over here. So metamorphic rock जो है वो indeed वो रिफ्लेक्ट करते हैं मिनरल ग्रेन्स का अलाइनमेंट उनमें. ऑफ कोर्स ही बात है, फोलिएटेड, लिनिएटेड, शिस्ट, नाइस, वटेवर. ठीक है. फैब्रिक्स उनकी जो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन होती है वो मैकेनिकल रोटेशन भी करते हैं एसिमेट्रिक ग्रेन्स का. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ कमिंग टू द 55 क्वेश्चन. Texture in which the porphyroblast shows small folds in the inclusion trials within it is called. बोल रहे हैं कि porphyroblast जो है स्मॉल फोल्ड्स दिखाता है, इंक्लूजन ट्रायल्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो इनमें से वो क्या है? सो ग्रेनोब्लास्टिक टेक्सचर क्या है? ग्रेनोब्लास्टिक टेक्सचर जो है इसको मोज़ाइक टेक्सचर भी कहते हैं. ठीक है. एंड इट्स अ टेक्सचर ऑफ द इक्विग्रैनुलर मिनरल्स एंड इट इज़ नॉन फोलिएटेड. सो दैट इज़ यहीं से एलिमिनेट हो गया. डिकसेड टेक्सचर जो है दैट इज़ इट्स अ नॉन प्रेफरेंशियल टेक्सचर. कोई प्रेफरेंस नहीं है कि इसको इसी सेटिंग में क्रिस्टल बनाने हैं या कुछ भी है. इट्स द इंटरलॉकिंग ऑफ द ग्रेन्स. ठीक है. रैंडमली ओरिएंटेटेड 3D नेटवर्क होता है और मल्टीपल डायरेक्शन होती है इस ग्रोथ, मल्टीपल डायरेक्शन होती है इनकी ग्रोथ की. मोटार टेक्सचर क्या होता है? एक लार्ज ग्रेन्स जो हैं, बहुत सारे लार्ज ग्रेन्स जो हैं स्मॉल ग्रेन से सराउंडेड हैं. ठीक है. वेरीफाइंग ग्रेन मैट्रिक्स. तो जो ये मोटार टेक्सचर है ना, ये आपका डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म के अंदर बहुत कॉमन है. वहाँ पे आपको ये ज़रूर मिलेगा जिसके अंदर लार्ज ग्रेन्स जो हैं वो फ्रैक्चर हो गए, फिर न्यूली फॉर्म फाइन ग्रेन्स रॉक बने. ठीक है. मोटार और पेस्टल, जस्ट अ मिनट, पेस्टल एंड ऑल. सो मोटार इज़ लाइक दैट, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म का ये प्रोडक्ट है. हेलिटिक टेक्सचर क्या होता है? हेलिटिक टेक्सचर होता है एक पोरफायरोब्लास्ट जो कि स्मॉल फोल्ड्स दिखाते हैं और फिर इंक्लूजन ट्रायल्स भी होते हैं इनमें. ट्रायल्स क्या होते हैं? जो कि ओरिजिनल रॉक है ना उसका रेमिनेंट, जो उसको कहते हैं ट्रायल्स. मिनरल ग्रेन्स जो कि दैट हैव बीन एनवेलप्ड बाय द ग्रोइंग पोरफायरोब्लास्ट. इट्स जस्ट अ रेलिक्ट थिंग, रेमिनेंट. ओके. So our correct answer is helitic texture. Now coming to the 56th question. Granoblastic polygonal is a texture commonly present in. अब बोल रहे हैं कि ग्रेनोब्लास्टिक पॉलीगोनल, ग्रेनोब्लास्टिक टेक्सचर यहाँ पे आया, ग्रेनोब्लास्टिक पॉलीगोनल टेक्सचर यहाँ पे आया, 24 में भी आया हुआ था, मैंने आपको दिखाया था. तो किस में प्रेजेंट होगा? शिस्ट में, फालाइट में, स्लेट में. दीज ऑल आर प्लेटी. दीज ऑल आर हैविंग फोलिएशंस प्रेजेंट इन इट. तो ये तीनों एक जैसी होगी. और 1 नॉट लगा दो तो क्वाड्रेट ही तो होगा यहाँ पे. Okay, बाकी you should know that granoblastic polygonal texture is present in quartzite. बाकी they all are foliated. Schist is foliated, phyllite is fine grain foliated, and slate is very fine grain foliated. So the here the fine thing is increasing. Now coming to the 57 question, which one of the what degree freedom can be ascribed to a zone if P and T are considered as only intensive variable? That is 2. F is equal to C minus P plus 2. P and T are the only intensive variables and the degree of freedom is 2. Both P and T can be varied independently in the system. Coming to the 58th question, reaction question. So we have this reaction, muscovite quartz बनाते हैं selemonite, K spar and H2O. At a fixed pH2O, it can be at the fixed pH2O, it can be termed as what? डीकार्बोनेशन रिएक्शन जो होती है वो उसमें CO2 रिलीज होता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म. जैसे कि आपका कैल्साइट है, सिलिका है, वो लेस्टोनाइट बनाएंगे, यानी कि CaCO3 plus SiO2, sorry for the writing, it will make CaSiO3, that is wollastonite and then the CO2. तो ये आपका डीकार्बोनेशन रिएक्शन है. जब आपके पास दो चीज़ें एक जैसे ना, कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, लेट मी टेल यू इन UPSC दिस टू वुड बी द करेक्ट, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा. कॉन्टिन्यूस रिएक्शन क्या होता है? एक ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं आपके मिनरल कॉम्पोजिशन में, आपका ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं विद टेम्परेचर एंड प्रेशर. कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर नहीं कि अच्छा इसी पे जाके कुछ बनेगा, नहीं, ग्रेजुअली ऑर्गेनिकली चीज़ें हो रही हैं ओवर अ रेंज. एल्बाइट से अनॉर्थाइट इज द कॉन्टिन्यूस रिएक्शन. डिसकॉन्टिन्यूस रिएक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस रिएक्शन होती है कि आपका मिनरल जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है एग्जिस्टिंग मिनरल का, और फिर नए वाले बन रहे हैं. इनका ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर नए वाले बन रहे हैं एक स्पेसिफिक TNP के ऊपर. ये तभी होगा जब TNP स्पेसिफिक होगा. तो डिसकॉन्टिन्यूस इज समथिंग दैट इज सीमिंग राइट. अब सॉलिड सॉलिड रिएक्शन क्या होते हैं? सॉलिड सॉलिड रिएक्शन होते हैं सॉलिड फेज ट्रांसफॉर्मेशन और पॉलीगोनल. वी हैव रेड इन द प्रीवियस वीडियो कि वही पॉलीगोनल ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, इसके अंदर कोई फ्लूइड फेज प्रेजेंट नहीं होता, कोई H2 कुछ नहीं होता, एंडेलोसाइट से सिलेमोनाइट. सो करेक्ट आंसर वुड बी डिसकॉन्टिन्यूस रिएक्शन. Now coming to the 59 question, in the blue schist facies rock, which one of the following mineral shows blue color prominently? Blue schist facies में कौन सा blue color prominently दिखाता है? Lawsonite, jadeite, glaucophene, actinolite. So these all are almost these are the one, these are present in the our blue schist facies. So इनमें से blue color सबसे ज़्यादा कौन दिखाता है? Glaucophene is the one जो दिखाता है. Lawsonite is colorless to pale blue and jadeite is green in color. So glaucophene is the correct answer. Coming to the 60th question, eclogite facies बोल रहा है मेटामॉर्फिक रॉक की एक बेसिक इंग्निस प्रोटोलॉइड, वो कौन सी असेंबलीज डिस्प्ले करेगा?
तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पे ऑम्फोसाइट आ गया वहाँ पे एक्लूजाइट आ गया. ऑम्फोसाइट गार्नेट विदाउट प्लेजिक्लेस, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. But let me tell you about the other, assemblages as well. Hornblende, plagioclase, epidote, garnet. Didn't we read it? It's amphibolite. Epidote and hornblende जहाँ पे गए amphibolite. Orthopyroxene, clinopyroxene, plagioclase, hornblende, garnet, olivine. That is something that gives rise to the granulite facies. Glaucophene, albite, lysonite is something that is present in the our blue schist facies. So let me give you the last वो. पहला क्वेश्चन आपका आया टर्म के ऊपर, बेसिक टर्म के ऊपर, ठीक है. उसके बाद आया आपका स्ट्रक्चर पे. उसके बाद आपका आया है टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म पे. देन वी हैव द स्ट्रक्चर टेक्सचर. ओके, नाउ दीज आर द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो कि आप आराम से कर सकते हैं. अनदर स्ट्रक्चर टेक्सचर क्वेश्चन, अनदर टेक्सचर क्वेश्चन. दिस इज समथिंग दैट कुड हैव कम इन igneous पेटोलॉजी, बट ओके इधर भी आ गया. तो next question is on the reaction, another one is on the assemblage, another one is on the assemblage. So kind of repetitive pattern. So with this I will end the video and I hope that you get what I'm trying to say. Thank you so much.